परमेश्वर कहता है श्राप और ब्लेसिंग का पार्ट मैंने आपके दोनों के आपके सामने रखा हुआ है. Word of God says, I've given you two parts, blessing and आज curse. आपका डिसीजन है, आप किसको चूज कर रहे हैं. It's your decision what you choose. कहते कि मैंने तो आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है. He said, I've kept everything good for you. कहते कि I call heaven earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. I've put मैंने जिंदगी और नरक और स्वर्ग, जिंदगी और मौत और blessings और curse रखी हुई हैं. मैंने आपको ब्लेसिंग और श्राप आपके सामने रखी हुए हैं. I kept both of them for you in front of आप you. किसको चूज कर रहे हैं. What do you choose today? देखिए परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता है. God do not force. परमेश्वर ये नहीं करता उठ के जाके चर्च जाओ जल्दी से. He don't force you to wake up and कभी go to आपको church. फोर्स नहीं करता है. He will never force. He will just tell you and you need to be so clever, you need to be so wise to make your decision on that He time. will tell you, but you have to be wise. आपको दिमाग लगा के चलना पड़ेगा. जब आप पूरी समझदारी से अक्ल और बुद्धि से डिसीजन को लेते हैं, प्रभु के वचन में लिखा तू और तेरे ऑफस्प्रिंग्स may live forever. If you make a decision with understanding and wisdom, even your generations will live. कहते कि आपकी जनरेशन बहुत ब्लेस हो जाएंगी उस वक्त, Your generation will be blessed. क्योंकि आपका डिसीजन बहुत वाइज डिसीजन था. क्योंकि आप because your decision was a very यिर्मयाह wise उसकी 1, 4 और 5 में ऐसा लिखा है. decision. यिर्मयाह देखते हैं. Now the word of the Lord came to me saying, खुदा का वचन मेरे पास आया. before I formed you in the womb, I knew you. मैंने जब तुझे बनाया था तो तेरी माँ की पेट में जब रखा था मैं तुझे जानता था. माँ की गर्भ में जब था मैंने तभी से तेरे को जाना है, तेरे को पहचाना और तेरे को चुन लिया है. I choose you and I know you and I consecrated you. And before you were born, I consecrated you. और जब तू पैदा हुआ था मैंने तुझे अपने लिए रख लिया. I appointed you a prophet to the और nations. मैंने तुझे चुन लिया अपना बेटा दूसरों के लिए. आपको परमेश्वर ने एक प्रॉफिट की पोजीशन दी हुई है God आज. has given you a position of prophet today. आपने परमेश्वर ने आपको उसके बेटी बेटी होने का हक दिया हुआ है God has आज. given you the privilege of being जब God's बेटा daughter बेटी and होता है sons. उसके पास सारा कुछ होता है, उसके पास सारे हक होते हैं. So the daughters and son has all the rights. क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि I appointed you a prophet of nations today. Because मैंने तुझे एक prophet of nations बता है. आपको आप मुश्किलों पे प्रबल प्राप्त कर सकते हैं. You will have victory over your troubles. आप उस मुश्किलों के ऊपर अपनी जीत प्राप्त कर सकते हैं. You will have victory over your troubles. आप उस मुश्किलों के बीच में खड़े होकर प्रभु के नाम से पुकारें, आपके लिए हो जाएगा. You can stand in midst of the troubles and Because call on the God name has of Lord, made God you a will do it. prophet on to all these nations. खुदा ने तुझे prophet बनाया है सब देशों के लिए. ये परमेश्वर का वायदा है आज. That's the promise of God कहते to you. not only the only child, not only the children, not only the sons and daughters, I just make you the prophet of the nations He today. said, I do not make you only the sons and daughter, but also the prophet of the nations. That's a position that God has given to us. ये position खुदा ने हमें दी है. देखिए जब आगे क्या लिखा है. Let's see what it says. He answered, then I beg you, Father. उसने बोला मैं तुझे भीख मांगता हूँ मेरे पिता. अब अमीर इंसान ये बोल रहा है, सुने ध्यान से. Now the rich man is saying, I beg you, Father, send Lazarus to my family. लाजरस को मेरे परिवार के पास भेज दे. For I have 5 brothers. क्योंकि मेरे 5 भाई हैं. Let him warn them so that they will not also come to his place of torment. और कि उनको बता दे कि वो गलती ना करे कि ना यहाँ भी ना आ जाए. वो कहता है कि प्रभु जी एक बार मुझे मौका दे दो कि एक बार मैं वापस चले जाऊं, एक बार लाजर को बोलो कि लाजर वहां पे चला जाए, मेरे 5 भाई और भी हैं. He says, give me an opportunity to go back, or Lazarus to go जो back सी and tell गलती them मैंने the 5 की brothers. है वो ना कर सके आज. And I want to warn them what the things I did, let them not do it. आज प्रभु का वचन यही हमें हमेशा अलर्ट करता रहता है So that's why the word of God always alerts you. कि वो वाली इंसान वो वाली गलती ना कर सके जो परमेश्वर से बेमुख हो जाए. So that man cannot do that mistake which will separate him from God. परमेश्वर ने पहला कहा कि आपके सम्मुख कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए है. The word of God says there should not be any other God apart from परमेश्वर ने me. कहा पहला ही कमांडमेंट कहता है कि आपके सम्मुख कोई और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए है. That's the first commandment. एक ही परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसका नाम यीशु मसीह है. We just got to worship one God, that is Jesus. जब हम उसकी कमांडमेंट को फुलफिल करते हैं, ओबीडिएंट होकर फुलफिल करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है फिर आपके जीवन में वो टॉर्मेंट वाली जीवन कभी भी छू नहीं सकती है. But when you fulfill the commands of Jesus, that life of tormentation cannot touch you. That's why he says, कहता है वो डर रहा है, घबरा रहा, कहता है मेरे 5 भाई और हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं जो मैं करता That's why he था. was afraid that I have 5 brothers and they're doing the same thing I used to do. देखिए Abraham what replied. Abraham ने बोला, They have Moses and prophet, let them listen to तो them. उनके पास मूसा और दूसरे हैं, उनको सुनने दे. कहते हैं कि वहां पे परमेश्वर के दास सेवक और संत बहुत सारे घूम रहे हैं. Let them hear what they are speaking and preaching He said, today. that place there are Moses and other prophets, let them understand and hear. तभी what they परमेश्वर say. का वचन कहता है कि कान खोल के सुनो कि आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है. That's what the word of God. So open your ears what the Spirit of God is telling to the जब आप church. अपने कानों से उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक लिबर्टी और फ्रीडम
हम उस वक्त दे देते हैं। And when you receive what God has for you, God gives you liberty. आज जब हम वर्शिप कर रहे थे कि परमेश्वर की जब आप आराधना कर रहे थे, I see that the two angels were sitting there left and right. So as you were worshiping, I saw angels of God sitting on the left and the right. आज वो फ्रीडम लेके आए हुए हैं, And they have come with the freedom today. आज वो एक लिबर्टी लेके आए हुए They हैं, come with the liberty today. आपके लिए छुटकारा लेके आए हुए हैं, Come with the liberty वो today. आज आपको देने वाले हैं। And they're going to give it to And you. you have to receive it. और आपको लेना पड़ेगा. Be wise today. अपने दिमाग खोले अपना. आप और तभी क्या है, कहते हैं उसके वचन को सुनो और स्वीकार करो, अपने दिल की जमीन पे अपने वचन की उसारी करना शुरू कर दें आज। And to listen to what God says and use that ground as your body as a fertile ground. And bring the double fourth of blessing through your life. और दुगनी दुगनी आशीषें अपनी जिंदगी से निकालें. हाँ ना, उसकी प्रूफ करें कि प्रभु की ब्लेसिंग मेरे जीवन में है। And then prove what the blessings of God is in कभी my भी life. उदास रह के बैठा ना करें कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। Don't be upset and sit that nothing good is कितने happening in my लोगों को life. देखो प्रभु में होते हैं, जो भी मुश्किल आती है तो उनका बिल्कुल चेहरा मायूस हो जाता है। So I've seen so many people who are in trouble when something comes into their life. कभी पास्टर्स को भी अच्छी मोटिवेशन चाहिए होती है। At times the pastor also needs good motivation. पास्टर्स भी आपकी शक्लों को देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। Even the pastors also get motivated when they अगर आप see भी you. 24 घंटे रोते रहेंगे, पास्टर भी बोलेंगे आप देखो एक और मुश्किल है। And if you keep on crying, even the pastor will say there is है ना, one more trouble. पास्टर भी आपकी प्रार्थना से चलते हैं। Because pastor also move by your prayers. आप जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तब हम प्रचार करते हैं। If you pray for us, that's how we preach. अपने जीवन में थोड़ा खुश रखा करें अपने आप And को। be happy in your life. मुश्किल भी होती है क्योंकि प्रभु ने मुश्किल दी है, परमेश्वर इस मुश्किल से निकालने की हिम्मत रखता And है। if there's a trouble, he knows that, and you know that God can take you out of this trouble also. That's a wise statement that God has given in our mouth today. ये बहुत अच्छी statement खुदा ने आज हमें दी है. तभी प्रभु के वचन में लिखा है, let them hear what the Spirit is talking to the congregation today. तभी वचन कहता है सुने जो प्रभु की आत्मा आपसे बात करती है. तभी प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, That's what it says. जब हम आगे पढ़ते हैं Proverbs उसकी 1 और 5 में ऐसा लिखा है, Proverbs में लिखा है let the wise hear and increase in learning. समझदार सुने और अपने और ज्यादा समझे. Let the wise hear. जो समझदार है सुने. जो समझदार है वो क्या करता है? समझदार क्या करता है? पहले वो सुनता है, फिर क्या करता है? फिर सुनाता भी, फिर बोलता है ना? कई लोग होते सुनते नहीं है, बस सुनाते रहते हैं। And there are people who don't listen and keep on saying. है ना, वो उनको होता है कि मैं बोल दूं, अंदर से पता नहीं कोई चीज उनको तंग करती होती, निकाल दें जल्दी जल्दी। There's something which in me is like wants to come out. है ना, तब प्रभु के वचन में लिखा है, let the wise hear first. तभी वचन कहता है कि जो एक सुनने वाला इंसान है सुने. Be a good listener today. अच्छा सुनने वाले बने. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर उन 5,000 लोगों को जब वचन शेयर करते थे, उनको ये वचन बताते होते थे, लोग बड़ी ध्यान से सुनते होते थे। That's the word of God says when Jesus used to preach to 5,000 people. तभी उन 5,000 लोगों में से परमेश्वर के नाम से 12 चेले सेवा के लिए तैयार हो गए थे। And out of those 5,000, 12 disciples came out of that. तभी परमेश्वर ने कहा, उस वक्त तभी परमेश्वर ने अपने उन 12 लोगों को एकत्रित किया कि ये प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। That's why God choose 12 people. They will share the word of God. Who knows you will be the next? आपको क्या पता है कि आप भी हो सकते हैं? आज आपकी बारी आ चुकी है। Because today Today the God messenger is here today. God's messenger is here today. आज वो आपकी टर्न लेके आए हुए हैं। And he got something else for और you. आज आपका टर्न आ गया है। And the turn is there today. Let the wise hear first. समझदार वाला समझे. And increase in learning. और बढ़े उस चीज में. इस बच्चों को ध्यान से समझे और इसको सीखने की कोशिश करें आप। You should increase yourself in learning. And the one who understand obtain guidance. और जो समझता है उसको एक guidance मिलती है. उसको गाइडलाइंस मिलती है। And he get the guidelines. उसको वो वाली चीजें पता लग जाती है कि अपनी जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है। And he goes to know the things that how to increase in life. उसको पता लगता है कि परमेश्वर को खुश कैसे करना है। And he knows how to make God happy. उसको पता है परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है। Know how to worship उसको God. पता लगता है चर्च में बैठना कैसे है। Know how to sit in the उसको church. पता लगता है प्रार्थना कैसे करनी है। How to pray. आप याद रखें, कोई इसकी कोई बहुत बड़ी टीचिंग नहीं है कि आपको लगता है कि मेरे को गाना नहीं आता, कि मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ। This is not a big teaching that if you don't know how to sing, then how to sing. When you get the guidelines, God will make you the best singer. जब आपको गाइडलाइंस मिलती है, खुद आपको एक अच्छा से गाने वाला बना देता है. आपको प्रार्थना, आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। आप मुंह खोलेंगे, आपके मुंह से अच्छे शब्द निकलेंगे उस You वक्त। don't have to pray in that way, but when you open your mouth, you will see that you will speak good things. Remember, he is a good teacher. Because वो एक अच्छा टीचर है. वो सिखाने की हिम्मत रखता है। वो टीच करता है. आखिरी आयत में ऐसा लिखा है, Let's see. Proverbs 1:8-9 में ऐसा लिखा है, Proverbs. Hear my son, सुन मेरे बेटे, your father's instructions, अपने पिता की बातें forsake not your mother's और teaching, अपनी माँ की बातों को कभी भूलना नहीं. for they are graceful garland for your head. वो अच्छी चीजें हैं तेरे लिए. एक मुकुट की तरह है, It's like a garland. and the pendants for your neck.
और तेरे गले के लिए एक पेंडेंट की तरह है. पेंडेंट्स बहुत पसंद है लोगों को. Pendants, lot of people like हाँ जी, pendants. पेंडेंट्स किसको पसंद है? Let me see. हाँ देखो, सारों को पेंडेंट्स पसंद है. All of them love pendants. Physically we like pendants, but we need to इतना कोप करें कि हम spiritually भी उस पेंडेंट से परमेश्वर हमें निवाज सकें आज. Physically you have so many pendants, but pray to God that God make you that pendant in a spiritual way जो also. बाहर से चमकते हैं, अगर आप पास जाके देखेंगे अंदर से वो बुझे हुए होंगे. So people who are shiny from outside but inside they are तभी ये dead. मत सोचा करें उन लोगों के पास सब कुछ है, उनके साथ क्या हो सकता है. Never think that they have everything. What will happen to मैं them? बता रहा हूँ, पेंडेंट उनके बाहर चमक रहे हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है. But I'm going to tell you, they are shiny from outside but inside they are अब dead. पर वो उसी बाहर से ही शाइन से अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं. But because of the outside shining, they make themselves comfortable. उस आउटसाइड की जो सी चमक से अपने को कहते रहते अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है. And with that shining, they say nothing bad has happened तब now. सब कुछ बिगड़ गया होता है. But everything has gone worse. प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे हम बाहर से शाइन ना करते हो, The word of God says, even if you don't shine from पर हम outside, अंदर से शाइन जरूर करते हैं. but you shine from inside. क्योंकि हम वो लोग हैं, हम मुश्किलों में भी हार नहीं मानते हैं. Because we are those people who do not give up. हम वो लोग हैं, हम मुश्किल में पड़ते हैं और मुश्किल वहां से भाग जाती है. And we are those people where we stand in the trouble and that trouble moves हम out. वो लोगों में से हैं, परमेश्वर कहते हैं कि आग की भट्टी में भी आप होगे, उस वक्त परमेश्वर आपके साथ होंगे. And we are those people, even we are standing in the fire, in that fire, God is standing with you. शद्रक मेशक अबेदनगो ने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि हम अकेले हैं. Don't तीन लोग, बहुत three people didn't say that we are वो कहते alone. परमेश्वर हमारे साथ है. They said God is with us. तो परमेश्वर हमारे साथ है, कौन God सी is with विरोधी us. की ताकत हमारे अगेंस्ट खड़ी हो सकती So who है. can stand against us if God is with us? तब यही वारी के जज्बे के साथ आप परमेश्वर के नाम से निकला करें आज. And with that same faith, walk You today. say, God, my future is blessed today And tell to God, खुदा मेरा आगे जो आने वाला जिंदगी है बहुत अच्छी है. because you are on my right side. क्योंकि तू मेरे right side में खड़ा हुआ है. आज यही परमेश्वर आज वचन में कह रहे हैं. That's what the word of God says. उस अमीर इंसान ने अपने जीवन में सब कुछ पाते हुए कुछ नहीं किया प्रभु की रजा को पूरा करने के लिए. That rich man didn't do anything, didn't fulfill a purpose of God. कई in लोग his सोचते life. हैं कि मेरी सेवा क्या हो सकती है. And many people think, what could be their service for God? मैं आपको बताता हूँ, आज आपके सामने जो इंसान दिख रहा है वो आपके लिए परमेश्वर ने आपको एक सेवा दी हुई I'm है. going to tell you, the person who is there in front of you, that is God's will in your कई life. लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं कहाँ जाके लगाऊं ये सब कुछ. He says, I have so many things, where do I invest myself? है ना, वो सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं किसको दे सकूं ये सब कुछ. To whom all I can give all मैं these प्रभु की things? सेवा कैसे कर सकूंगा. How can I serve God? जो आपके साथ है उसको खड़ा करने की हिम्मत रखें आज. But if somebody is there in front of you, make sure that you can make that person rise, stand ये back. आपको परमेश्वर ने मिनिस्ट्री दी हुई है. That's the ministry God has given you. That's why कहते हैं जो आपका नेबर होता है उसको वचन सुनाया करें ज्यादा. That's what the word of God says to your neighbor. Tell you the word of God If you more. will be wise enough, you will understand also. If you're wise, अगर आप समझदार हैं, आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ. तभी प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर के मैसेंजर्स आज जगह जगह प्रचार कर रहे हैं. अगर वो समझते हैं, सीख लें और अपने जीवन को नियुक्त कर लें, उनकी जीवन की जो से चैलेंजेस हैं कभी भी इतनी मजबूत नहीं हो सकती और परमेश्वर उसे डिफीट करने की हिम्मत रखता है. So there are so many messengers which is not from God. If you understand it, God is able to take you out of that. That's the word today we have today. ये Hallelujah. वचन है आज का हमारा. जल्दी से खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे. Hallelujah.